present Mr. Manish Joshi, who is the president of Tax Advocate Association, is also with us. Mr. Manish, are you able to hear me? Able. Okay. And today's subject is search and seizure under the GST law. Advocate Mr. Kuntal Parikh from Gujarat is with us. Firstly, I am requesting Mr. Manish Joshi with his opening notes. Please, Manish ji. Hello. हाँ जी, आप स्टार्ट कीजिए सर. Good evening, all the friends. Good evening, Kuntal bhai. Manish bhai. Good evening. I am thanks to Tax Advocate Association committee members, office bearers, past president and president. Thanks to NSC, Nigam bhai, Akshat bhai, and all of you. Kuntal bhai, I am happy to you are coming with our joint association and best subjects you are select and our all the committee member all the members. I am request to continue your further program. Thank you, sir. Thank you, sir. Friends, Thank you. Friends, up till that, Manish bhai, thank you. up till that, you have observed that so many issues we have dealt with every day. No problem. Now today, search and seizure aspects is also most important. Nowadays, every tax professional is facing problems for enforcement visit and other issues. So now, our leading advocate, Mr. Kuntal Parikh, who is with us from Gujarat, I am requesting Mr. Kuntal Parikh to start with his discussion. Thank you, Nigam bhai. Am I audible? Yes, you are audible. Nigam bhai, Akshat bhai, Gujarat Sales Tax Bar Association na Pramukh Shri Urvish bhai, Sunil bhai Keshwani, President of the Tax Advocate Association. Thank you very much for giving me this opportunity. I am confronted with the subject where I have no practical knowledge because I do not attend the search, but don't worry friends. I will try my best to justify the subject given to me by Akshat bhai and Nigam bhai. Please continue, sir. This is the area I would say under the GST which has been faced by the professionals maximum so far, because the search and seizure has started for many reasons in many businesses and industries. So what is the scope of the search? Section 67 deals with the inspection, search and seizure of the goods. So whenever the search proceedings are being conducted by any officer, what points are to be taken because it is a statutory power. So the provision says any officer not below the rank of the Joint Commissioner or any other authorized officer by that Joint Commissioner in the prescribed form INS 01, only they can carry out the search proceedings. Means the officer who is below the rank of the Joint Commissioner must be in possession of the authorization in his favor, then only he can carry out the search. For carrying out the search, what are the criteria? This is the who can carry the search and seize the goods. Then what is the scope for carrying out the search? That officer who is in possession of the authorization or the Joint Commissioner must have reason to believe that any goods are liable to be confiscation or any document, books or the things which shall be useful for any investigation and found to be secreted in any place. The points which I have highlighted in the orange color, we will discuss about that by the different judgments of the different forums. So the scope is that for carrying out the search, he must have the Joint Commissioner or the officer authorized by him must have the reason to believe that any goods are liable to be confiscation, and with respect to the documents, books or the things, they must be useful in his belief for any investigation and they might be secreted in any place. Under these circumstances, he can authorize any officer for carrying out the search. What can be searched and seized? Under this section, only goods
documents, books, or the things can be searched and can be seized. It is very important to note that here there is no term person. So the question may arise whether the person can be searched during this search under the GST law. Whether the money, cash found during the search can be included in the terms, these goods, documents, books, or the things. In my view, the cash is not included as a thing, certainly not as a goods. It is out of the definition of the goods, money. But in my view, things has to be read in the context which can be transacted under the GST law. So the cash cannot be seized under the GST law by the GST officers. उत्तर जी, Yes, Akshat bhai. फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर हो सकता है तो आपका वीडियो चालू कीजिए और थोड़ा जोर से बोलिए क्योंकि पब्लिक Okay, डिमांड, इट इज पब्लिक डिमांड. fine. हाँ, दैट्स इट. यस, प्लीज. Hello. Now is it audible? या, So what the things, goods, documents, and books can be searched and seized. So in my view, the person cannot be searched during any search proceedings, and no cash can be seized by the GST officers under sections 67 subsection 2. The authorized officer can search only the premises for which authorization is issued under this prescribed form INS 01. क्योंकि मेरे हिसाब से मतलब ये जो ऑथोराइजेशन फॉर्म है उसके अंदर जो भी प्रीमाइसिस को सर्च करने के लिए ऑथोराइज किया गया है ऑफिसर को, वही प्रीमाइसिस सर्च हो सकती है वो ऑफिसर के द्वारा. हम प्रैक्टिकली बहुत बार ऐसा देखते हैं कि वो कोई प्रीमाइसिस पे सर्च पे गए, 2-3 दिन सर्च किया, कोई डॉक्यूमेंट्स मिले या कोई एविडेंसेस मिले तो ऑन द बेसिस वो लोग वहां से दूसरी प्रीमाइसिस पे चले जाते हैं. सो आई बिलीव दैट इन दिस सर्कमस्टेंसेस दिस प्रैक्टिस इज बीन carried out very casually, but it is not supported by the law because the provision is very clear, and this form also talks about the premises which is authorized by the officer, joint commissioner, that premises can only be searched. तो आज उनको और कोई प्रीमाइसिस पे सर्च चाहिए तो उनके पास ऑथोराइजेशन होना चाहिए. assessee can ask to the officer for the authorization to carry out the search at that premises. Further, the officer has the power to seal or break open the door of any premises or to break open any almirah, electronic device, box, receptacle in which any goods, accounts, registers, documents of the person suspected to be concealed in the case where access is denied. जहाँ पे सर्च चल रहा है, अगर कोई असेसी ने या किसी ऑथोराइज पर्सन ने वहां पे एक्सेस करने के लिए ना बोला गुड्स, अकाउंट्स, रजिस्टर्स और डॉक्यूमेंट्स जो ऑफिसर के हिसाब से उन्होंने कंसील किया है, तो वो संजोगों में वो लोग अलमारी या बॉक्स या जो कपबोर्ड है वो तोड़ सकते हैं और जरूरत पड़े उसको सील भी कर सकते हैं. जब गुड्स सीज करते हैं तो द ऑफिसर हैज टू मेक द इन्वेंटरी ऑफ द सीज्ड गुड्स, द गुड्स, डॉक्यूमेंट, बुक्स that must contain the description, quantity, unit, mark where applicable, and he has to get the signed by the person from whom such goods or from whose custody these goods are seized. So he has to make the inventory. उसको एक inventory बनानी पड़ेगी, उसने क्या क्या documents, goods, books उसने seize किया है और उसके सामने उसका description उनको लिखना पड़ेगा with quantity and the marks and all, where so far as it is possible. The provisions of section 67 says that the provisions of the criminal procedure code shall be applied for carrying out the search under the GST law. So as per this law, during the search there has to be 2 panchas. The panchas to be made available before the search started. Their signature is required in the panchnama. Panchnama is to be made and there has to be original signature of the person, either owner or the person from whose custody the goods are being seized. So these are the mandatory requirement. अगर आज कोई पंचनामा में पंचनामा की सही नहीं है तो वो पंचनामा का कोई वैल्यू नहीं गिना जाएगा. It has no legal value. So ये requirement fulfill होनी चाहिए. There is a law on पंचनामा as well separately कि पंचास कौन होने चाहिए, ये खुद ऑफिसर्स नहीं होने चाहिए, उनके डिपार्टमेंट से नहीं होने चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, उनका क्या क्वालिफिकेशन है, उनकी साइन लेनी पड़ेगी जब वो सर्च पे आएंगे तब. तो ये लॉ भी कंप्लाई करना पड़ेगा.
Thereafter the order of seizure shall be passed. It has to be in the prescribed form, INS 02 form, जो rules में prescribe किया हुआ है rule 139 में. तो ये search and seizure का powers हुए, but the subsection 2, the first proviso says there can the order of prohibition can also be passed. आज कोई practically कोई goods है जिसको कोई officer seize नहीं कर सकते, तो वो संजोगों में वो prohibition order pass कर सकते हैं. So under when this order is passed, the assessee or the person under whose custody these goods are lying cannot remove or cannot deal with these goods. This is called the order of prohibition. The law empowers the officer to pass under the first proviso to subsection 2 of section 67. The person from whose custody any documents are seized is entitled to make the copies thereof and take the extracts. मतलब कोई भी आदमी के जिसके पास से ये डॉक्यूमेंट्स सीज किए हुए हैं तो उसको राइट है कि वो डॉक्यूमेंट्स की कॉपी उसको दिया जाए सीज करने से पहले, या उसका कोई एक्सट्रैक्ट है उसको कॉपी करना है तो कर दिया जाए, unless in the circumstances where the officer believes that कि ये कॉपी करेंगे that will be prejudicial in his opinion to the investigation, then in that case only he can deny. But in my view ये जो denial है वो casual नहीं होना चाहिए. It may happen in the rare to rare cases कि आज किसी के भी document seize किए जा रहे हैं तो उसकी copy इसको ना मिले. So the scope is very limited कि कब उनको copy ना दी जाए officer के द्वारा. So this was the provisions for subsection 2 of section 67. Here I have tried to cover maximum the scope. कौन officer search और seize कर सकते हैं, कौन सी premises search और seize हो सकती है, कौन से goods, things, documents, books can be seized, and subject to what condition that the officer must have reason to believe that, and if the good or documents or things are found to be secreted in any place. Order of prohibition can be passed where the goods cannot practically be seized. The law of Panchnama has to be complied with. ये जो डॉक्यूमेंट्स, गुड्स और थिंग्स उन्होंने सीज किए ऑफिसर ने, वो कितने टाइम तक वो लोग रिटेन कर सकते हैं या उसके बाद उनको रिलीज करना पड़ेगा, या रिलीज करना है तो सब्जेक्ट टू व्हाट कंडीशन दिस गुड्स एंड बुक्स कैन बी रिलीज्ड. These provisions are of part of 67 itself. Seized documents, books or the things can be retained so long as necessary for the examination or for inquiry of the proceedings. कोई inquiry or proceedings के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स, बुक्स और थिंग्स की जरूरत है तो वो लोग जब तक जरूरत है तब तक सीज कर सकते हैं. पर ये it is important to note that so far as the goods are concerned, the seized goods are concerned, they can be seized maximum for the period of 6 months. Once the notice has to be issued. If the notice is not issued, then the goods have to be returned within 30 days thereafter. The seized goods have to be returned if the notice not issued within 6 months from the seizure date. On showing sufficient cause, period of 6 months can be extended furtherly, but not beyond the further 6 months. तो total 12 months से ज्यादा कोई भी goods को seize नहीं कर सकते authority. अगर नोटिस जो इश्यू की है उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स, बुक्स और थिंग्स उन्होंने सीज करके रखे हैं, अगर वो उसको रेलेवेंट नहीं लग रहा है तो उनको नोटिस देने के 30 दिन के बाद वो डॉक्यूमेंट्स, बुक्स एंड थिंग्स भी रिलीज करना पड़ेगा. There is a condition for the provisional release also. Subsection 6 of section 67 provides that on furnishing the bond in INS 04 form of the value of the goods and the bank guarantee equivalent to the amount applicable to tax, interest and penalty payable, अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती है तो गुड्स कैन बी रिलीज प्रोविजनली. मतलब एक तो बॉन्ड देना पड़ेगा जो वैल्यू है उनकी गुड्स का, और जितना भी टैक्स, पेनल्टी एंड इंटरेस्ट एप्लीकेबल है वो पूरी अमाउंट पे की जाएगी एज ए बैंक गारंटी में सिक्योरिटी दी जाएगी. देन ओनली द गुड्स कैन बी रिलीज्ड प्रोविजनली. मतलब इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी गुड्स सीज हुए हैं तो उसके 6 महीने में नोटिस इश्यू करना पड़ेगा. रीजंस देने के बाद वो फर्दर 6 महीने तक वो गुड्स को सीज करके रख सकते हैं. नोटिस इश्यू होने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स, बुक्स और द थिंग्स which are not relevant or not considered in the notice, then those books, things and the documents have to be released and returned by the officer. These are the judgments I would like to discuss with you regarding the subsection 2 of section 67 and the scope of section 67 itself.
मैंने जहां तक ट्राई किया है कि जीएसटी के जितने भी जजमेंट्स है वो अलग अलग सब सेक्शन को अभी तक जो भी आए जो हमें हेल्प कर सकते हैं. द परेश नाथालाल चौहान इज द जजमेंट टॉक ऑफ द कंट्री, आई वुड से. ऐसा सर्च कभी हुआ नहीं होगा कहीं पे भी. परेश नाथालाल चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, उसमें सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 67 has been discussed extensively considering the all judgments of the Supreme Courts and the relating to the different laws. ये केस में ऐसा हुआ था कि जीएसटी ऑफिसर्स ने प्रीमाइसिस सर्च की थी 11 अक्टूबर 2019 को. वो सर्च चला था 18 अक्टूबर 2019 तक, मतलब 8 दिन तक ये सर्च चला था. टेक्निकली उनके पास ऑथोराइजेशन था, पहले ही दिन 11 तारीख को ही सर्च कंप्लीट हो गया था. दे हैड टेकन द मिरर इमेज ऑफ द ऑल द डेटा ऑफ द मोबाइल फोन्स फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स. पर जब प्रीमाइसिस सर्च की तब उनको जो असेसी था, जो परेश नाथालाल चौहान था, वो नहीं मिले. सो दे कैम्प्ड एट द रेसिडेंशियल प्रीमाइसिस ऑफ दिस पिटिशनर. वो लोग 7 दिन तक वहीं पे रुके. उनके साथ पुलिस ऑफिसर्स भी आए थे और जा ही नहीं रहे थे. फैमिली मेंबर्स को कन्फाइन कर दिया था. वो लोग घर के बाहर नहीं जा सकते थे. पूरे दिन उनके मोबाइल के फोन रिकॉर्ड्स किए जा रहे थे, उनसे इंक्वायरी किया जा रहा था. So on 18th October, the petitioner filed the petition before the Gujarat High Court, objecting to this search. The Gujarat High Court came heavily on the officers, the way in which it was conducted the search. Hello. Yes, you are audible. Go on. Okay. I saw some error on screen, that's why. तो बाद में गुजरात हाई कोर्ट ने सेक्शन 67 के जो स्कोप है उसको डिस्कस किए, वो मैं चर्चा करूंगा इधर. The court held that under subsection 2 of section 67 the officers have no power to search any person. जो मैंने अभी बोला इसीलिए. तो असेसी वो जो परेश नाथालाल थे वो अवेलेबल नहीं थे, तो कोई बात नहीं. ऑफिसर्स को जैसे द मोमेंट द सर्च वाज कंप्लीटेड ऑन द डे इटसेल्फ, दे हैव टू लीव द प्रीमाइसेस. दे हैव नो राइट एट ऑल अंडर एनी लॉ. इवन द पुलिस has no power to reside at anyone's place under the criminal procedure code. So under these circumstances the officer cannot stay back at the premises. मतलब हाई कोर्ट टोल्ड दैट कि जो भी प्रीमाइसिस सर्च के लिए ऑथराइजेशन मिला वही प्रीमाइसिस सर्च कर सकते हैं. किसी पर्सन को वो लोग सर्च नहीं कर सकते. फैमिली मेंबर्स ऑफ दैट असेसी कैन नॉट बी सर्च अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. अगर सर्च के दरमियान असेसी नहीं भी है, कोई रीजनेबल रीजन से वो अवेलेबल नहीं है, तो ऑफिसर उनके लिए वहां रुक नहीं सकते. वो रात को आएगा, कल आएगा, या फैमिली मेंबर्स के ऊपर उसका फोन आएगा तो हम उसको कांटेक्ट करके ट्रेस करेंगे, क्योंकि ऑफिसर के पास वो असेसी को सर्च करने के लिए पावर्स ही नहीं है स्टैट्यूट के अंदर. सो आज कोई भी ऑफिसर कोई पर्सन के लिए फोर्स नहीं कर सकता कि मुझे कोई पर्सन को सर्च करना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द कोर्ट हेल्ड टू दैट एक्सटेंट के मान लो कि अगर वो असेसी इंटेंशनली भी नहीं आता है, so the officers are not relevant with that. वो नहीं आता है, so there are other courts available with the officers. जब तक समन्स इश्यू नहीं किया जाए किसी बंदे आदमी के लिए, तब तक वो आदमी के सर्च नहीं हो सकता. and in this case the summons under section 70 of the GST Act was not issued. So under these circumstances the officers were completely acted illegally and without authority of law. The Gujarat High Court held that. It was further held that कि आज कोई सर्च के लिए ऑथराइजेशन इश्यू किया है तो इट वाज सबमिटेड दैट इट वाज द ऑथराइजेशन फॉर द कैरिंग आउट द सर्च ऑफ द प्रीमाइसेस एंड द गुड्स एंड द थिंग्स एंड डॉक्यूमेंट. इट डज नॉट एम्पावर द ऑफिसर टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. आज सर्च के लिए जो भी ऑफिसर्स आते हैं, हम मान लेते हैं कि वो स्टेटमेंट लेंगे ही, वो लोग स्टेटमेंट ले लेते हैं. द सर्च पावर सेज द पंचनामा हैज टू बी ड्रॉन. इट डज नॉट टेक अबाउट द recording of the statement. अगर किसी ऑफिसर को स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है, so he has to issue the summons under section 70. so उसके ऊपर भी गुजरात हाई कोर्ट ने डिस्कस किया ये जजमेंट में. Further, the section 67 does not empower the officers to confine the family members under any circumstances. The court has held that it is a violation of the fundamental rights of those family members and they have encroached upon their privacy of the members. To that extent it is held. फैक्चुअली क्या हुआ था, जब 18th को उन्होंने सर्च कंक्लूड किया, वो दिन पे असेसी जो परेश चौहान की मदर है, उनके मोबाइल से रिकॉर्डिंग मिली जिसके अंदर ये पता चला कि असेसी ने उसकी फाइल्स कहाँ पे छुपा के रखी है. वो किसी नेबर के वहां पे थी.
So on that basis the officers वो neighbor के वहाँ पे गए, वो search वो premises भी search किया, and after that they concluded the search कि हमें जो चाहिए था वो मिल गया. The documents which were concealed, so they were trying to protect the respondent were trying to protect the action of their officers in the court by saying that on the last day we found the concealed documents, and thereafter we we ended the search proceedings. The High Court has said that the search which is illegal and without authority of law from the inception cannot be considered as a valid on any success found by the officer during the search. मतलब कोर्ट ने ये बोला कि जब आखिर में 18th तारीख को उनको जो भी रिकॉर्डिंग मिला वो भले असेसी के अगेंस्ट था, पर उन्होंने जो सर्च कैरी आउट किया वो जहां पे रुके वो दैट इज विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ विच इज इलीगल. तो ये संजोगों में भले कितनी भी सक्सेस ऑफिसर को मिले कोई भी संजोगों में, बट दैट कैन नॉट बी supported by such act. So it was held illegal. The court held to that extent कि section 152 में officers को कैसे सेव किया जाए, अगर कोई एक्शन उनसे गलत है तो उनको इम्यूनिटी दी गई है. So the counsel for the respondent argued to that extent that the action of the officers is immune by the section 152. The High Court has said that such action cannot be stated to be immune by the such provision because the action itself is without authority of law and they have violated the fundamental rights of the family members of the assessee. So in my view, this is the landmark judgment so far as the scope of the search is concerned under subsection 2 of section 67. In another case, Golden Cotton Industries versus Union of India, the order of prohibition was passed. The submission of the petitioner was that when the premises was searched, the order of prohibition was passed. Though the goods were available there, all documents, things and books were available. So in these circumstances, the order of prohibition cannot be passed because they have not concealed any documents or the goods. So in view of the petitioner, the goods can be, the prohibition order can be passed if any documents or the things are found to be secreted during the search premises. The court has held that the secreted has to be read as a reason to believe that the goods could have been secreted. अगर कोई ऐसे रीजंस लग रहे हैं, ओपिनियन है ऑफिसर का कि ये गुड्स अभी सीक्रेट नहीं किए हैं, पर अगर इसको हम सीज नहीं करते हैं या इसको हम प्रोहिबिट नहीं कर सकते डील करने से, तो वो असेसी इसको सीक्रेट कर सकता है. तो ये संजोगों में भी ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन कैन बी पास्ड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 67. So the petition was rejected on the ground that the action of the officer was within the power of subsection 2 of section 67 because secreted doesn't mean कि वो actually secret हुए होने चाहिए. अगर वो secret भी हो सकते हैं ऐसा लग रहा है तो ऑफिसर उसको prohibit कर सकते हैं. Mohammad Tajal Hussain versus State of Assam. The police detained the goods, the truck and the goods betel nuts in the truck, and thereafter informed the GST officers. The Guwahati High Court held that even the police has no power to deal with these goods under the GST law because the 67 of the GST law is extensive and there is entire procedure is prescribed. So it is within the power of the GST officers who are in possession of the authorization. They can only search the premises of any person and thereafter they can seize the goods. So even the police officer has no power directly to seize the goods under the GST law. In state of UP versus K-Pen Fragrances Private Limited, the Supreme Court held that so far as the provisional release is concerned, under Article 226 of the Constitution, even the High Court does not have power to provisionally release the goods, extricating the assessee from his liability. मतलब जो भी bond देना है जो वैल्यू के गुड्स की वैल्यू के एंड द बैंक गारंटी इन वे ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी पेएबल दैट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय द ऑफिसर अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस. तो ये जो प्रोसीजर हैज टू बी कंप्लाइड विद एंड द पिटिशन वाज अलाउड, अपील वाज अलाउड ऑफ द रेवेन्यू वेयर द Delhi High Court has reduced this amount of the security which was set aside by the Supreme Court. मतलब अभी तक ऐसा हुआ है. मेरे भी एक केस में गुजरात हाई कोर्ट ने बैंक गारंटी जो दिया था उसके बिना खाली बॉन्ड के बेसिस पे गुड्स रिलीज कर दिए थे which were seized under section 129. So the High Court has released the goods, but fortunately that order was not challenged before the Supreme Court.
But now after this judgment, the Supreme Court is very clear कि जो security amount है that cannot be reduced in any circumstances. Nepean Impacts Private Limited versus Commissioner of Delhi GST. ये केस के अंदर पूरी प्रीमाइसिस को सील कर दिया था ऑफिसर ने. दिल्ली हाई कोर्ट सेज इट इज बियॉन्ड द पावर ऑफ सेक्शन 62. द प्रीमाइसिस कैन बी सर्च्ड, ओनली गुड्स, थिंग्स, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स कैन बी सीज्ड, दे कैन नॉट सील द एंटायर प्रीमाइसिस. सो आज ऐसे काफी बार ऐसा होता है कि पूरे गोडाउन को सील कर दिया या पूरी प्रीमाइसिस को सील कर दिया. सो दैट इज नॉट द एक्शन परमिसिबल अंडर द सेक्शन 67. प्रकाश सिंह हठी सिंह उदावत वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात. ये केस में स्टेटमेंट के लिए असेसी को बुलाया था और जो असेसी स्टेटमेंट देने गया था तब जीएसटी के अंदर उसकी पर्सनल कार एंड 2 मोबाइल सीज कर दिए थे. Here now in this case the officer had no authorization under section 67 to carry out the search and seize the goods. The High Court has held that this action is completely without authority of law and it is illegal. Here also the court has discussed the scope of section 157 which gives the immunity to the officers. So the goods cannot be seized, the personal belongings cannot be seized without authority, without the authorization given by the joint commissioner or any higher officer than him. In my view, scope of seizure under subsection 11 of section 67 are different than the subsection 2 of section 67. It says that if the proper officer has a reason to believe that any person has evaded or attempted to evade the payment of tax, he may, for the reasons to be recorded in writing, seize the accounts, register or documents of such person produced before him and shall grant the receipt of the same and shall retain the same as long as necessary for any proceeding. अब सबसेक्शन 11 की लैंग्वेज देखेंगे तो वो सबसेक्शन 2 से काफी डिफरेंट है. सबसेक्शन 11 assessing officer can seize only accounts, register and documents. They have no power to seize any goods or the things. Further, here the search is not required or the authorization from the joint commissioner or any higher officer is not required. So how these provisions are different? Only accounts, register and documents can be seized under subsection 11. They can be seized without carrying out a search because it does, before the seizure it does not talk about the search proceeding. Proper officer is not required an authorization. He must have reason to believe that any person has evaded or attempt to evade the tax. So the basis of opinion under subsection 2 and subsection 11 are different. Here under subsection 11, there must be a reason to believe that the assessee has evaded or attempting to evade the tax, while under subsection 2 it says that reason to believe that the goods are liable to be confiscated or any things, article, books or documents might be concealed by the officer, might be concealed by any assessee. So here again the rules also 139 does not talk about that the seizure has to be given in INS 02 and proper officer can retain such seized goods, seized accounts and register as long as necessary for any proceedings. So in my view subsection 11 will be applicable जब ऐसा है कि हम assessment में appear हुए, हमने कोई documents produce किए और when we are producing these documents, the officer feels that these documents, on the basis of these documents, he can make the belief that there is attempt of evasion of tax or the assessee has evaded the tax, so he can seize this good. He can seize these documents or any register produced before him. That is why here the what says the produced before him. Here it does not say this during the search anything is found. So these powers are different. It is noticeable they under this power they cannot seize any goods. अगर वो जो मैंने अभी केस बात की गुजरात हाई कोर्ट का लास्ट द प्रकाश सिंह हठी सिंह, अगर इधर सबसेक्शन 11 के अंदर पास किया होता तो अभी इलीगल होता. दे हैव द सीजर पावर टू सीज द डॉक्यूमेंट्स बट नॉट द गुड्स, but it was exercised under subsection 2 of section 67. Summons, as stated by the Gujarat High Court in Paresh Nathalal, that in absence of the summons, the statement of any person cannot be recorded. So what are the powers under section 70? Proper officer has a power to issue summons. Summons can be issued to any person whose attendance is required
to give evidence or to produce a document or when any other thing required in any inquiry. So any proper officer can issue the summons. Here the authorization is not required. The summons can be issued to give the evidence or to produce documents or when any other thing required for any inquiry. So in my view, that includes the recording of the statements also. So the summons can be issued for the recording the statement also, covered under the clause C. The provision of the civil procedure code shall be applicable so far as the summons is concerned. Person to whom the summons is issued has to appear in person or through the authorized representative, but when the issued for recording a statement, authorized representative cannot appear. मतलब आज कोई summons issue हुआ है for appearing before the officer, तो आज उसके ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव उसमें अपियर होके टाइम ले सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट समन्स इज स्पेसिफिकली फॉर द रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट, देन दैट पर्सन हैज टू पर्सनली अपियर बिफोर द ऑफिसर फॉर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट. Further, the law says that the presence of advocate cannot be allowed during the recording of the statement. अगर किसी एसएसजी को एडवोकेट को अपियर रखना है, वहां पे उनकी प्रेजेंस चाहिए, so he has to take the order from the court. और कोर्ट बहुत रेयर टू रेयर केसेस में ही ऐसे पावर्स देती है, अलाउ करती है एडवोकेट को अपियर होने के लिए. दे हैव टू एस्टैब्लिश के व्हाट आर द रीजंस फॉर विच द एडवोकेट्स अपीयरेंस इज रिक्वायर्ड. उनको दिखाना पड़ेगा कि अगर वो अपियर नहीं होंगे तो क्या हो सकता है. Recently, the Delhi High Court has given the judgment on this, and there is a judgment of the Gujarat High Court also, but we are not going into that right now. अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है सेक्शन 70 में या ड्यूरिंग द सर्च प्रोसीडिंग्स, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दो स्टेटमेंट्स. ये जो जजमेंट्स है विक्रम सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, फिर परसोना कॉस्मेटिक्स एंड द राज रतन इंडस्ट्रीज, ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स हैं, बट द क्रक्स ऑफ ऑल दिस जजमेंट इज दैट liability cannot be fastened on the assessee merely on the basis of the statements in absence of any reasonable or the cogent evidences. मतलब कोई भी स्टेटमेंट आज रिकॉर्ड किया है ऑफिसर ने, तो खाली वो स्टेटमेंट के बेसिस पे वो लायबिलिटी कंफर्म नहीं कर सकते या कोई एलिगेशन फ्रेम नहीं कर सकते. दैट स्टेटमेंट हैज टू बी सपोर्टेड, इट हैज टू बी corroborated by the evidences. Even the statement of the director merely cannot support the case of the revenue. Clandestine removal is required to be established by the revenue by producing the concrete and tangible evidences. This is all case law says that merely the statement is not sufficient to establish that the assessee has evaded the tax. Further, ऐसे भी केस लॉ है कि स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड किया जाए, कब किया जाए. अगर स्टेटमेंट वॉलंटरी नहीं है, सो इट हैज नो एविडेंटरी वैल्यू. कि आज हमने बहुत देखा है कि सर्च रात को 11 बजे 12 बजे 1 बजे तक चल रहा है और फिर रात को 12 बजे 1 बजे स्टेटमेंट लेंगे. सो द असेसी फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस कैन एस्टैब्लिश दैट द स्टेटमेंट इज नॉट गिवन वॉलंटरीली. ही वाज नॉट healthy at that time, he was not fit at that time to give the statement, so he can establish that the statement was not given voluntary. So the value of that statement can be determined by the court on the circumstances put before the court. Evidentiary value of the confessional statements made by the co-accused. GST में ये केस लॉस बहुत काम में आएंगे, क्योंकि जब इनपुट टैक्स क्रेडिट के इश्यूज होते हैं कि परचेजर्स के पास से इंक्वायरी अपने वहां आएगी या वेंडर के पास से वहां जाएंगे, तो इट इज बाउंड टू हैपन कि उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, आप ये स्टेटमेंट दे दो, फिर दोनों को नोटिस आएगी alleging that under section 74 के you have suppressed the transaction willfully, you have attempted to evade the tax. So the Supreme Court and the Gujarat High Court and many other courts held in all these cases, what is the value of the co-accused. आज किसी की इनपुट टैक्स क्रेडिट करोड़ों रुपए की डिनाई की गई है और उसके पास आके स्टेटमेंट देते हैं कि वेंडर ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि हमने ये गुड्स परचेजर को दिया ही नहीं है. सो तो वेंडर के पास भी नोटिस गई होगी कि उसने आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स पे नहीं किया है. इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ द परचेजर इज डिसअलाउड ऑन द बेसिस दैट यू हैव नॉट परचेज्ड द गुड्स. सो हियर देयर विल बी सिचुएशन वेयर द स्टेटमेंट्स ऑफ को-एक्यूज्ड shall come before the court to consider. So the किसी भी even it is a confessional statement of the co-accused, if it is not voluntary, it has no any evidentiary value under the law. It has to be supported by the corroborative evidences, and it is the duty of the court
to ask the revenue to produce the through independent sources to give the corroborative evidences, and it has to be voluntary. Unless any statute provide that the conventional statement of the co-accused shall be the valid piece of evidence, then only it shall be considered under the GST law. Neither under the GST law, under the FERA or the income tax or money laundering, narcotic drugs, any provision provides that the confessional statement of the co-accused shall have the evidentiary value. It has to be supported by the evidences. डिट्रैक्शन ऑफ स्टेटमेंट, तो मेरे हिसाब से बहुत बार ऐसा होता है कि जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है ड्यूरिंग द सर्च, बाद में उसकी कॉपी प्रोवाइड नहीं की जाती है, हमें पढ़ने को नहीं दिया जाता है. तो इन माय व्यू एनी स्टेटमेंट इज रिकॉर्ड एंड देन द असेसी शुड रिट्रैक्ट इट इमीडिएटली. उसको लेट नहीं करना चाहिए. पॉसिबल है तो एफिडेविट से उसको रिट्रैक्ट करना चाहिए विद द कोरोबोरेटिव एविडेंसेस व्हाई इज रिट्रैक्टिंग दिस स्टेटमेंट. क्योंकि रिट्रैक्शन की इतनी वैल्यू नहीं होती है, बट स्टिल इट ऑलवेज सपोर्ट्स द केस ऑफ द असेसी. मतलब कोई भी स्टेटमेंट दिया गया है तो खाली ऐसा लिख दिया कि ड्यूरेस या अंदर कोवर्जन दिस स्टेटमेंट इज गिवन, इट इज नॉट सफिशिएंट टू कन्विंस द कोर्ट. देयर हैज टू बी सपोर्टेड बाय द एविडेंसेस कि इतने टाइम पे रिकॉर्ड किया गया था, मैं फिट नहीं था, मेरे पे ये प्रेशर था. तो ऐसे कोई संजोगों दिखा के वो रिट्रैक्ट करना चाहिए. देन ओनली इट विल हैव द एविडेंटरी वैल्यू एंड द रिट्रैक्शन विल सपोर्ट द केस ऑफ द असेसी. So in Vinod Solanki and Vishnu and company, these are the judgments. There are so many judgments on this law. Cross examination. Recently, the Gujarat High Court in Gujarat Narmada Valley Fertilizers and Chemicals Limited gave the judgment for the cross examination. When any statement of any person or even if the panchas are relied in the notices, and if the assessee asks for the cross examination, then the officer has to give the cross examination. अगर कोई भी स्टेटमेंट पे नोटिस पे रिलाई किया है तो ऑफिसर को उसका क्रॉस एग्जामिनेशन देना ही पड़ेगा. अगर वो नहीं देते हैं, so it shall be considered as a violation of the principle of natural justice. In one of the case, the court held that it is not prejudicial to the assessee by not giving any cross examination of the panchnamas. The Supreme Court has held that it is not the correct way to look at it. It is the right of the assessee कि अगर कोई documents या statement of the पंचायत उसके against में rely किया गया है notice में, then the cross examination has to be granted by the court. So these are the three cases, and there are many plethora of cases which says the cross examination has to be granted of any person of the co-accused or the panchas if their statements are relied in the show cause notice or in any proceedings. Scope of provisional assessment. The section 83 is when the provisional attachment can take the place, where during pendency of any proceedings under this section, section 62, 63, 64, 67, 73 and 74, if the commissioner is of the opinion that for the purpose of protecting the interest of government revenue, it is necessary so to do, he may by order in writing attach the provisionally any property including bank account belonging to the taxable person in such manner as may be prescribed. So ये जितने section है वो जो pending है proceeding इसके अंदर, so the office and the commissioner has right to provisionally attach the bank account of the assessee. So most of the cases we may came across right now is under section 67, 73 और 74, उसके अंदर ही proceedings pending होगी. तो ये संजोगों में the commissioner may provisionally attach the property. It is another landmark judgment of the Gujarat High Court, Valerius Industries versus Union of India, 2019, 109 Taxman 218 Gujarat High Court. Here the Gujarat High Court has dealt with the words commissioner, opinion, interest of the government revenue, what is necessary so to do, and may what the may indicates. Here also the premises was searched, the goods were seized and order for provisional attachment was passed. The issue before the Gujarat High Court was that whether the commissioner can delegate these powers. गुजरात में उन्होंने नोटिफिकेशन के द्वारा ये जो प्रोविजनल अटैचमेंट के पावर्स है वो डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, स्टेट टैक्स ऑफिसर को उन्होंने डेलीगेट किए हुए हैं. सो इन द गुजरात इफ द स्टेट अथॉरिटीज सर्च द प्रीमाइसेस, सो दे कैन provisionally attach the property
under this power. So the issue came before the Gujarat High Court whether these assistant commissioner, deputy commissioner, and the state tax officer have the power to provisionally attach the goods. In view of the Gujarat High Court, only the commissioner can carry out this function. Only they can provisionally attach the goods. In view of the Gujarat High Court, it is discussed that the word commissioner is used knowingly by the legislature, unlike the section 67(2), where it is said that proper officer not below the rank of the joint commissioner can authorize any other person. Here the power of authorization is not given, and it is the provision which cannot be exercised casually. In rare to rare circumstances, only the commissioner can provisionally attach the property. So only the commissioner can attach the property. The Gujarat High Court has further discussed the issue that even if we assume that the commissioner has power to authorize the other officers, and this officer, assistant commissioner, has provisionally attached the goods, then what is the value and what is the manner in which the goods can be provisionally attached? The Gujarat High Court has said the word opinion has to be read with the reason to believe. So the object is the same, that when there is opinion or reason to believe, it means that it has to be supported by some material which was unearthed during the search proceedings. It is not the subject which has to be objective, but there has to be material on the basis of which the officer has made his opinion or he has made his belief. Then only the provisional attachment can take place or the search can be carried out. Merely on any opinion which is not supported by any material cannot be stated as it is his belief or it is his opinion for carrying out the search or making the provisional attachment. The High Court has further said that the word may indicates not only the discretion but an obligation to consider that the necessity has arisen to pass an order for provisional attachment with a view to protect the interest of the government. मतलब ये जो may word use किया, it doesn't mean के he may by order in writing, मतलब वो order writing में दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है. It is not a discretionary. On the contrary, it is obligation on the officer to put pen to show that the interest of the revenue is required to be protected here, and that is why the provisional attachment is to take place. तो जब भी ओपिनियन फ्रेम करे कोई भी ऑफिसर, तो उनके पास उसके मटेरियल होने चाहिए ऑन व्हाट बेसिस दे आर provisionally attaching the property. अगर जरूरत पड़े तो they have to show before the court also कि this is the material. If the action itself is challenged before the court, then the officer has to establish that these are the material on the basis of which I have framed the opinion. Supreme Court in Bhikhalal Bhai versus Vithalal Bhai Patel versus State of Gujarat, AIR 2008, SCC 1771 held that the terms opinion and the reason to believe have the same object. But the Gujarat High Court has also accepted this proposition and followed that the opinion framed under used under the section 83 and the reason to believe terms used under subsection 2 of section 67 has the same object. But it is not necessary कि आज कोई search करता है where the officer has reason to believe कि ये सर्च करना जरूरी है और गुड सीज करना जरूरी है. So on that basis, impliedly he has the power to provisionally attach the property under section 83. So the criteria for exercising these both powers are different. Here under section 83 also there has to be opinion of the officer for invoking this power, and under section 67 also they have the reason to believe they must have. But the basis of the opinion and the reason to believe are completely different. Here the officer must have opinion that the interest of the revenue is to be protected, and that is the criteria for invoking the provision of section 83. While under the section 67, he must have reason to believe that the goods are liable to be confiscated, or the things or the documents or the books which might have been concealed by the assessee. So the basis for the reason to believe and the opinion are different, though the intention of the legislature is same, that it has to be substantiated by some material. I have already exceeded my time, so I am concluding here so far as the search seizure provisions are concerned. Thank you. Nigam bhai? Yes, sir. Yes, sir. Thank you very much, Kuntal ji. Now, friends, you can raise your hand during our discussion.
Friends, here I would like to draw your attention that with today's discussion, Kuntal bhai has briefed us on certain issues. So we do not hesitate when our client is visited by any tax enforcement officer. Keeping in mind with the help of these various judgments at present as well as in future also. So we can deal with this. Further, my friends, as discussed earlier, other state associations are also going to join with us and are also joining with us. As a part of this, Gujarat Sussex Bar Association is also joining this webinar, and Vice President of Gujarat Sussex Bar Association, Mr. Vinod Bhai, is also joining with us. I'm requesting Mr. Vinod ji to share few words on this occasion. Mr. Vinod, are you there? Mr. Vinod? Yes. Yes, yes. Please continue, sir. Hello. 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 Vinod ji, Yes, yes, sir. Yes. please continue. Myself, Vinod Parmar, Vice President of the Gujarat State Bar Association, Ahmedabad, Gujarat. I thanks to NSE and his team, especially Sri Nigam Bhai, Dr. Akshat Bhai, Dr. Bhaskar Bhai, and all the other team members to conducting in webinar in lockdown due to COVID-19 is very useful to our refresh our knowledge, and thanks to all speakers, Advocate Sri Varis Hasani, Sri Rupendra Kansal, and Sri VP Gupta, Advocate Sri Pankaj Jia, Sri Advocate Sri Bhavya Pupat, Advocate Sri DK Gandhi, Advocate Sri Kuntal Parikh, to give a speech on allotted subject in very simple legal language. It is very useful in our routine practice. And I request to NSE to continue this kind of a webinar in future also. And my best wishes to NSE and wishing to specular future in NSE. We are happy to be a part of the NSE. Thanking to all the members. Thank you, Vice President, Mr. Vinod ji. Thank you, Harish ji. Oh, sorry. Thank you, Vinod ji. Thank you. Now, friends, I would like to share few things. Since from 13th March, we have started this type of webinar. So many participants are requesting to provide PPT and link of this video also. So we are in process. All together, we will circulate through WhatsApp as well as through email. We are noting each and every email with our system. So wait for few days, and then after, further I would like to share that from next week onwards also, from Monday onwards, we are going to start another session. We will circulate with the name of the participant. Now, sir, Mr. Kuntal ji, are you there, sir? Yes, yes, sir. Please, sir. So here a few questions are raised from members. Yeah. First is from Mr. Bipin Chandra. Mr. Bipin Chandra, are you there? Yeah. Please continue, sir. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Hello, sir. I am Bipin from Vapi, Gujarat, South Gujarat. Bipin ji, you are in sleeping mode. No, sir. Okay, no, please continue, sir. Please continue. Hello, I am not sleeping mode, sir. Not an issue, sir. Your screen is not an issue. Please continue. हेलो हाँ हाँ जी बिपिन जी बताइए. हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है सर कि अगर सीज करने के लिए आते हैं कोई गुड्स वगैरह तो उसका कोई लेटर रहेगा उसके पास के बाद में आएगा, इनको कैसा मालूम पड़ेगा कि ये हमारे पास सीज करने के लिए आए, ये प्रिवेंटिव वाले आएंगे कैसे आएगा? जैसे एक्साइज का लॉ था तो उसमें प्रिवेंटिव वाले आते थे, तो इसमें जीएसटी ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर आएगा, प्रिवेंटिव टीम्स आएगी, ये कौन सी टीम्स आएगी सर? इसमें कौन सा डिपार्टमेंट में से आएगी? नहीं सर, टीम तो कोई भी आ सकती है जब भी सर्च के लिए आए. हाँ बोलिए सर. जो ऑफिसर आ रहे हैं उनके पास ऑथोराइजेशन होना चाहिए कि उनको INS 01 फॉर्म है जीएसटी में, ऑथोराइजेशन नहीं है उनके पास, तो आप उनको ना बोल सकते कि आप मेरी प्रीमाइसेस सर्च नहीं कर सकते. और ऑथोराइजेशन जॉइंट कमिश्नर या उनके हायर अथॉरिटी से ही दिया होना चाहिए. डेप्यूटी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर को ऑथोराइज नहीं कर सकता कि आप जाके सर्च करके आओ. अच्छा, एम आई क्लियर बिपिन जी?
हाँ आज तो आज इसमें स्टेट इसमें टैक्स ऑफिसर भी आ सकता है, सेंट्रल टैक्स ऑफिसर भी आ सकता है, डेप्यूटी कमिश्नर भी आ सकते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर भी आ सकते हैं, एनफोर्समेंट प्रिवेंटिव से भी आ सकते हैं, बट दे मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ द ऑथराइजेशन इश्यूड इन INS 01 फॉर्म, एंड दैट हैज टू बी इश्यूड बाय द जॉइंट कमिश्नर और एनी ऑफिसर हायर टू द जॉइंट कमिश्नर। अच्छा, तो इसमें सर ये लेटर में DIN नंबर चाहिए, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर क्लियर होना नहीं, ये चाहिए, किसमें प्रिस्क्राइब क्या फॉर्म है, वो प्रिस्क्राइब फॉर्म है, वो फॉर्म में जितनी माहिती है वो फिलअप की होनी चाहिए। मेरे हिसाब से अंदर DIN नंबर नहीं है इसमें DIN नंबर नहीं है, नहीं, बस ये मेरे को शायद, पूछना। वो देखना तो सर पड़ेगा रूल्स में एग्जैक्टली। अच्छा, तो सर इसमें अगर सीज किया होगा तो सपोज के ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमारा हेड ऑफिस रहेगा, जैसे कि बुक्स वगैरह भी हेड ऑफिस से कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है प्रोसीजर, ये लोग मांग सकते हैं तो हम लोग कैसे ये करेंगे? अगर हेड ऑफिस में रहेगा और तुरंत करने के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगेंगे जनरली तो उस प्रोसीजर में सर्च होता है तो उनके पास तुम्हारे प्रीमाइसिस का तो डेटा रहेगा ही, आपकी हेड ऑफिस रजिस्टर्ड होगी, तो वो सर्च में आपकी जितनी भी प्रीमाइसिस है उसको ऑथोराइज करेंगे ही वो लोग। दे कम ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ओनली। ऐसा नहीं कि आज प्रीमाइसिस किसी की सर्च करनी है तो इधर ये प्रीमाइसिस है वहां के लिए मैंने उनको ऑथोराइज किया। दे हैव टू गिव द रीजंस। I think there is some हेलो complication. बिपिन There is चंद्र, जब समझते आपका हेड ऑफिस है तो, और आपका गोडाउन भी है, अगर गोडाउन पे आते हैं और ऑथोराइजेशन है तो ऑथोराइजेशन में आपका हेड ऑफिस को भी सर्च करने की उनको ऑथोराइजेशन दिया गया होगा। I think there is some communication, yeah, the connectivity problem with Mr. Bipin. Meanwhile, we have another question from Galaxy C7 Pro. आपका ભરત સ્વામી અરે સાહેબ તમે છો? પ્લીઝ હા કન્ટિન્યુ સર. નામ તો હા બતાવો તમારા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ નું. हाँ પ્લીઝ जी, કન્ટિન્યુ સર. પ્લીઝ સર પ્લીઝ. हाँ जी। वैसे तो मैंने क्वेश्चन उसके अंदर लिख के दिए है, फिर भी चलो ऑनलाइन हूँ तो बात कर लेता हूँ कि जी। अगर सीजर होता है तो उस टाइम पर उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो लोग कैश भी सीज करे, पासपोर्ट भी सीज करे, लैपटॉप भी सीज करे, गुड्स भी सीज करे, तो क्या उसके अंदर कोई लिमिटेशन है? कैश सीज करने का पावर्स है उनके पास? मेरे हिसाब से मैंने जैसे बताया कि वो लोग गुड्स, एनी डॉक्यूमेंट्स, बुक्स और थिंग्स कैन सीज। सेक्शन 67 में वो लोग कोई गुड्स, थिंग्स, बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स ही सीज कर सकते हैं। सो गुड्स की डेफिनेशन में से तो मनी बाहर है एक्सप्रेसली, तो थिंग में अब सवाल ये आता है कि थिंग्स के अंदर कैश को गिना जाए ना गिना जाए। इन माय व्यू द थिंग्स डज नॉट इंक्लूड द कैश, सो दे कैन नॉट सीज द कैश। in my view, things has to be read in the context that which can be transacted by the assessee under the GST law. Even though they also So seize the cash seize करने के powers मेरे व्यू में passport thing में आ सकता है, पर for seizing that those passports they must have the reason कि ये passport क्यों seize कर रहे हैं. they have no any They can make reason. the They belief. say only they say only seizure under section 6 subsection 2 of section 6 of GST. तो That तो कोई गुड्स सीज किया है तो उनके पास रीजन है, वो तभी बताना जरूरी नहीं है, पर एज आई सेड के दैट रीजन, द मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ विच द सीजर इज कैरीड आउट, दैट मटेरियल कैन बी पुट बिफोर द कोर्ट। अगर आप ये सीजर को चैलेंज करते हैं कोर्ट में, तो कोर्ट में वो ऑफिसर को दिखाना पड़ेगा कि मेरा ये रीजन था पासपोर्ट सीज करने के लिए, पर तो रीजन कौन से मटेरियल के बेसिस पे था, क्या रीजन था कि उन्होंने पासपोर्ट सीज किए। वो तो कुछ शो नहीं किया है, they didn't show anything. हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, वो जब सीजर मेमो करते हैं उसमें जो जो सीज करते हैं वो लिखते हैं। इफ यू आर अग्रीड यू हैव टू चैलेंज दैट प्रोसीडिंग्स बिफोर द कोर्ट, तब कोर्ट उनको पूछ सकती है कि तुमने ये एक्सट्रीम स्टेप लिया है तो उसके लिए क्या मटेरियल है तुम्हारे पास। Okay, in your opinion, this is a scope for High Court writ, right? यस, अगर Shall we कैश go सीज for writ? किया है, अगर कैश सीज किया है तो तुम कर सकते हो। हाँ जी, 58 lakhs rupees सीज किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे हिसाब से जीएसटी के अंदर ऑफिसर्स को कैश सीज करने के पावर्स नहीं है। Okay, thank you very much. वेलकम। Thank you, sir. Thank you very much, sir. Now, next question is from Mr. Anil Bajpai. Mr. Mani, सर इन बिटवीन मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अभी जो पहले क्वेश्चन था बिपिन चंद्र जी का वापी में, उसमें एक इश्यू आया था, अगर सीजर के लिए आते हैं कोई भी तो उसमें वो नोटिस में DIN नंबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इन माय
PIN number is the तीन mandatory. नंबर या डीन नंबर? तीन नंबर होना DIN, चाहिए। DIN. जो डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर अब नया आया है वो इट इज मैंडेटरी। वो जनरली होता ही है सबके अंदर। नहीं, जनरली नहीं, अभी अगर नहीं होता है नहीं, इट इज कंपल्सरी, मैंडेटरी हो गया। मेरे सभी समन्स के अंदर ये चीज है ही, DIN नंबर होता ही है। मेरे पास अभी INS 01 फॉर्म है जो नहीं, रूल sir, नहीं। here, 1 minute, one minute. INS 07 is the documentary form number, but DIN is the number which is required to be generated from common portal, and based upon this, any tax authority should conduct their further proceeding. Please, sir. Now next is Mr. Anil Bajpai. Mr. Anil, are you Sir. there? Please continue. Yes, sir. Hello. Please Yeah. continue. हेलो सर, गुड इवनिंग सर। मैं Good एक evening. तारीख को 1 जनवरी को हमारा उसका हॉस्पिटल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो वहाँ के कुछ कैलेंडर नए साल में हम लोगों ने मंगवाए थे। तो जिस डीलर से परचेज किए थे उससे कैलेंडर लेकर के और उसमें जो टाटा सुमो छोटी गाड़ी होती है उसमें जा रहे थे। तो वहाँ CGST डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने वो गाड़ी रोक ली और सीज कर दी। तो उन्होंने कहा उसमें बिल ड्राइवर के पास नहीं थे और उसके साथ साथ जो ईवे बिल था उसकी कीमत थी करीब 1 लाख रुपया। तो अधिकारियों ने उसे ट्रक आपकी आवाज ड्राइवर के कट रही पास। है अनिल जी। हेलो हेलो सर, वो आ रही है? हेलो निगम भाई, अनिल भाई इज नॉट ऑडिबल। हेलो Anil ji, हेलो सर, But- मैं एक बाहर हेलो निकल। सर अभी आ रही है? yes, please continue. सर तो सर मैं फिर से पूरा बता दे रहा हूँ। हाँ, सर 1 तारीख को 1 जनवरी हाँ, को मैं हमारा इधर तक सुना कि आपके पास ड्राइवर के पास सर जो है वो बिल लेना भूल गया था और जो हमारा सेलर था उसने ईवे बिल जनरेट नहीं किया था। तो CGST डिपार्टमेंट ने गाड़ी को सीज कर था ली। या नहीं था? हाँ ओके। जी, ईवे बिल नहीं इशू किया था, सप्लायर ने ईवे बिल इशू नहीं किया था उसका। नहीं था। तो CGST डिपार्टमेंट ने गाड़ी को सीज कर दिया और उस पे पेनाल्टी लगा दी, कॉन्फिस्केशन वगैरह सब लगा करके अमाउंट जमा करा लिया। और हाँ जी। जब उनसे लिखित में उनको दिया गया कि हमारे पास वो ड्राइवर जो है बिल लेना भूल गया है और नेक्स्ट डे उसका ईवे बिल जनरेट करके उनको दिया गया, तो उसके बावजूद उन्होंने 74.5 पे पूरा अमाउंट जमा करा लिया, पेनाल्टी, टैक्स और कॉन्फिस्केशन वगैरह सारा। तो इसकी अपील अभी हम लोगों को करनी थी मार्च में, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम उसकी अपील अभी फाइल नहीं कर पाए। सर ऐसी स्थिति में क्या होता है, अगर हम अपील फाइल करते हैं 74.5 में, चूंकि उन्होंने रुपया हमारा जमा करा लिया था, तो हमें कहाँ तक उसमें हेल्प मिलेगी? जीत पाएंगे? ये तो डिटेल फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, पर तुम अपील फाइल जी। कर सकते हो। अभी तुम्हारा जो लिमिटेशन है वो खत्म नहीं हो जाएगा। इट शैल बी जी। एक्सटेंडेड ड्यू टू दिस सर्कमस्टेंसेस। तो आपको जी। अपील फाइल करना चाहिए। उसमें आपको एक गुजरात हाई कोर्ट का सिनर्जी करके एक जजमेंट आया है, वो आपको हेल्प करेगा। ये आपका जी। जो गुड्स सीज किए वो सेक्शन 67 में नहीं किए, ये ट्रांजिट में थे, इसीलिए तो ऑफिसर ने सेक्शन 129 इन्वोक किया है। हाँ और जी। उसमें आप सेक्शन 130 बता रहे हो, तो वो हिसाब से उन्होंने शायद फाइन इन लिeu ऑफ कॉन्फिस्केशन लगा के वो भी डिमांड किया हाँ। होगा। तो आपको उसमें भी चैलेंज सर करना है, तो अपील फाइल कर उसमें भी उन्होंने सर MOV जो है 10 और 11 जारी किया है। हाँ, तो 130 उन्होंने इन्वोक किया है, तो उसके लिए वो लोग ये 130 राइटली इन्वोक किया है कि नहीं, उसके लिए गुजरात हाई कोर्ट का एक सिनर्जी करके जजमेंट है, वो आपको यूजफुल हो सकता है। ऑन सर द तो बेसिस उसका ऑफ दैट यू कैन मेक योर केस। सर उसकी उसमें डिटेल पूरी मिल प्रिंसिपल है जाएगी कि केस की? कब 129 130 हाँ जी, वो मैं शेयर करूंगा अभी। ओके। अनिल जी, एज पर लास्ट डिस्कशन, जिस तरह से DK गांधी साहब से भी जो बात हुई थी, इसी तरह से ये जो भी है मैं कुंतल सर से लेके आपको मैं फॉरवर्ड करूंगा। हाँ जी, ओके, वो थैंक यू मिल सर, जाएगा। थैंक यू सर। Kuntal ji, you are a very humble person, but we need to speak loud again, Mike. सॉरी, लाउडली Yes, आवाज sir. कम आ रही? Hi, you are very humble person. I know you, but at this outset, I am requesting on behalf of all to speak loudly. yes. ओके। सर आपका कुंतल जी, आपका माइक्रोफोन, हाँ जी, बताइए। हाँ बस माइक्रोफोन अब थोड़ा, आ रहा है आवाज? हाँ अभी आ रहा है सर, प्लीज कंटिन्यू।
Next question is from Mr. Bipin Chandra. Mr. Bipin Chandra, are you there? yes sir, yes sir. Please continue. हेलो हाँ जी बताइए। हेलो, हाँ सर, मेरा एक सवाल दूसरा है कि ये सीजर हुआ तो इसपे अपना रिटर्न वगैरह नहीं भरा, तो इसमें बैंक अटैचमेंट वगैरह, गुड्स वगैरह अटैचमेंट हो सकते हैं सर? हाँ, वो जो अटैचमेंट हो सकते हैं वो सेक्शन 83 के अंदर हो सकते हैं। अच्छा, तो ये सीजर्स में नहीं गिना जाएगा ना सर? नहीं, वो अटैचमेंट हुआ ना, वो गुड्स, सीजर। जैसे कि रिटर्न मैंने नहीं भरा, पेमेंट नहीं भरा, जैसे कि जीएसटी का रिटर्न वगैरह 4-5 महीना नहीं भरा, और ये गुड्स वगैरह पेमेंट नहीं किया मैंने जीएसटी का, तो उस केस में क्या होगा सर? ये बैंक अटैचमेंट होगा कि गुड्स वगैरह उन लोग ये करेंगे, फिनिश गुड्स वगैरह? हेलो आपका हेलो हेलो, वन सेकेंड, उनका कुछ फिर से हेलो जी बताइए। नहीं कोई बात नहीं। योर वॉइस इज ब्रेकिंग बिपिन। Let's नहीं, move to the other question. हाँ वो उनका Then we'll, yes. उनका फिर डिस्कनेक्ट हो गया है। नेक्स्ट इज मिस्टर प्रकाश पटेल। मिस्टर प्रकाश पटेल। हेलो। हाँ यस प्लीज। हाँ जी सर, मेरा जो क्लाइंट है वो SGST में जुरिडिक्शन है उसका, स्टेट गवर्नमेंट में। और मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि जो CGST के ऑफिसर है वो नोटिस या समन्स या बिजनेस प्लेस की विजिट कर सकते हैं? हेलो। उनके मेरे हिसाब से जो GST नंबर, हेलो आ रही है आवाज? प्लीज कंटिन्यू। मेरे हिसाब से हेलो आ रही है आवाज? कंप्लीटली यस। CGST के ऑफिसर जो है उनके ज्यूरिसडिक्शन में भी तुम्हारी प्रीमाइसिस आती होगी, बट तुम्हारा जो फाइल है वो SGST के अंदर होगा, इसलिए दे माइट बी लुकिंग आफ्टर द एजुडिकेशन ऑफ योर केस। सो मेरे हिसाब से ऑन दिस बेसिस अगर आप सर्च को चैलेंज भी करते हैं तो वो लोग ट्रांसफर करके SGST वाले को भेजेंगे। ओके सर, लेकिन अभी सर्च नहीं हुआ, उन्होंने सिर्फ नोटिस दिया है, तो नोटिस को भी हम चैलेंज कर सकते हैं ना? हाँ, नोटिस को तुम चैलेंज कर सकते हो, ये ग्राउंड ले सकते हो कि इट इज नॉट विद इन योर ज्यूरिसडिक्शन। ओके, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट इज आपका ऑनलाइन स्टेटस प्रकाश जी चेक करना, जो सिस्टम में दिखाते मोस्टली एसएससी को GSTN नंबर जो इश्यू होता है भले स्टेट में, पर सेंट्रल का भी आपको डिवीजन और रेंज दिखाएगा मेरे हिसाब से। अच्छा, ऐसा है? नहीं, मैंने देखा वो जुरिडिक्शन SGST में ही है, सर्टिफिकेट में भी स्टेट गवर्नमेंट तो ही फिर लिखा आप हुआ है। ग्राउंड ले सकते हो, आप ग्राउंड ले सकते हो। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट इज मिस्टर तुषार सिंघल फ्रॉम पंजाब। मिस्टर तुषार जी, आर यू देयर? Yes, I am there. प्लीज कंटिन्यू। Nigam sir, good evening. सर देयर इज तुषार जी Hello. आपकी आवाज कट हो रही है। कनेक्टिविटी प्रॉब्लम सर। Hello. यस प्लीज कंटिन्यू। तो सर जी आप Hello. वीडियो करके ऐसे ही बोल दीजिए। Hello. You switch off the video and speak. Hello. यस प्लीज, यस यस तुषार जी। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि लाइक अभी जो बात हो रही थी इन SGST एंड CGST जुरिडिक्शन डिफाइंड है। हाँ, SGST ऑफिसर ने ये मानते हुए कि वी आर नॉट रजिस्टर्ड इन GST, उन्होंने विद ड्यू परमिशन उन्होंने हमारे यहाँ सर्वे करा था और डॉक्यूमेंट सीज करके ले गए थे। ओके। अब हम दूसरे एरिया में जुरिडिक्शन में वी आर रजिस्टर्ड विद अनदर नेम। इट्स अ केस ऑफ अ होटल। होटल हमने लीज में दिया था और वो हमारा दूसरे नेम में रजिस्टर्ड है। तो कैन वी चैलेंज देयर सर्च एंड सीजर जो उन्होंने किया है, और simultaneously we can request the transfer the case to our concerned jurisdiction officer? पर मेरे हिसाब से ऐसे कोई भी मतलब स्टेट या सेंट्रल के वो बेसिस पे आप कोई भी प्रोसीडिंग्स को चैलेंज करेंगे तो उसके बहुत लंबा टाइम तक मतलब उसको सक्सेस नहीं मिलेंगे आपको। दैट विल बी फॉर द टाइम बिंग ओनली। आप वो ग्राउंड ले सकते हो। अभी बॉम्बे हाई कोर्ट का, दिल्ली दो एसएससी की दो प्रीमाइसिस है, तो दोनों प्रीमाइसिस ऑफिसर के द्वारा सर्च हो सकती है, बिकॉज यू आर कैरिंग आउट द बिजनेस फ्रॉम बोथ प्रीमाइसिस। उसमें अलग अलग स्टेट में था। सेल टैक्स में एक ही पान नंबर का SGST में वो STF का अलग ज्वाइंट कमिश्नर है, अलग डिवीजन का। he has given the permission
they were not knowing the fact that we are registered in other jurisdiction. So we can request for the transfer of case to our concerned नहीं, jurisdiction. आपको मतलब उसको चैलेंज के लिए ग्राउंड लेना है तो ले सकते हो। आपको सामने से क्यों बताना है कि आप गलत जुरिस्डिक्शन, आपके पास पावर नहीं है, ये ऑफिसर के पास पावर है, आप वहां जाओ, उनको बोलो कि वो ऑथोराइजेशन करे और बाद में हमारे वहां है। ऐसा होने की जरूरत नहीं है। सिटी है, दूसरे सिटी के दोनों बॉर्डर लाइन के ऊपर हमारा बिजनेस प्रेमिसेस है, तो दूसरे सिटी का जुरिडिक्शन वो सोच रहे थे कि हमारे जुरिडिक्शन में है और उन्होंने सर्वे कर दिया। हाँ, तो तुम चैलेंज कर सकते हो। आज कोई अलग स्टेट का ऑफिसर दूसरे स्टेट में आके वो एक्सरसाइज करते हैं पावर्स, तो तुम उसको चैलेंज कर सकते हो। राइट, थैंक यू, थैंक यू, Thank you. थैंक यू, Same थैंक issue. यू। Now I am requesting Mr. Ravi Shah. Mr. Ravi. Mr. Ravi. Yes, I'm listening. Please continue. Please continue. Sir, my query is this: on 20th March, search has been taken place at my client's premises. There are 6 godowns and 1 registered premises. All godowns are registered as additional premises. What happened that all the godowns are within vicinity of the 2 or 3 kilometers. So what the client has done, that he has made all the records of overall stock at head office in tally, but godown wise record was not there. There was no major discrepancy was there. Within 24 hours search was concluded, and they have seized all the godowns. On the basis they have written that you have not prepared godown wise stock record. So I want to know whether it is possible to seize in that manner, because what happened that now we are trying. दिल्ली हाई। Yes sir, please sir. Yes, मतलब आपका ये कहना है कि आपके 6 गोडाउन थे, वहां पे डॉक्यूमेंट्स फिजिकली अवेलेबल नहीं थे, बट आई बिलीव दैट द सॉफ्ट कॉपी में इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल थे, दो द रूल्स प्रोवाइड दैट द फिजिकली डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी एट द प्रीमाइसेस। नहीं, हमारे क्या कीपिंग दैट देयर इज अ ह्यूज स्टॉक ऑफ टोबैको पूरा स्टॉक हेड ऑफिस में टैली में रखा हुआ है, बट कौन कौन से गोडाउन में वो बाइफरकेट नहीं किया हुआ। सो ऑन दैट ओनली बेसिस, हां सर, कंसीडरिंग द सर्कमस्टेंसेस, मेरे हिसाब से उनको पूरा गोडाउन सील नहीं करना चाहिए, पूरी प्रीमाइसेस सील नहीं करनी चाहिए। उसके लिए मैंने अभी जो चर्चा की उसमें दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट भी है और गुजरात हाई कोर्ट और दूसरी एक हाई कोर्ट का भी जजमेंट है कि पूरा गोडाउन तुम सीज नहीं कर सकते हो। वो लोग गुड्स सीज कर सकते हैं, बट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस इफ दे एस्टैब्लिश कि हमें ये पूरी प्रीमाइसेस सर्च करनी है, तो वो भी रीजनेबल पीरियड के लिए ही होनी चाहिए। द कोर्ट हैज हेल्ड दैट टू एक्सटेंड आल्सो इन जजमेंट। अभी सर क्या हुआ है, हम उनके साथ प्रोविजनल रिलीज के लिए गए, डीजीजीआई का सर्च था डिफरेंट स्टेट से। अब क्वांटम ऑफ अमाउंट इतना ज्यादा हो गया है कि दे आर आल्सो इन डायलेमा कि इसको क्या किया जाए, क्योंकि सारे गोडाउन का मिला के स्टॉक इतना ज्यादा हो गया है कि अगर वो प्रोविजनल रिलीज के लिए अगर हमको आज बोलेंगे, क्योंकि 20 तारीख को इन लोगों ने कौन डायलेमा में, ऑफिसर या ऑफिसर उन लोगों ने हमको लेटर भी लिखा 2 बार कि इस रीजन से हम वी थिंक कि हम आपको ये ऑफर कर सकते हैं, हम आपको ये ऑफर कर सकते हैं। क्या तो ऑफर कर सकते हैं? उन लोगों ने हमको ऐसा लिख के दिया कि एज पर पहले तो हमारा टोबैको है, तो उन्होंने बोला कि ये पेरिसेबल है, तो आप पेरिसेबल की ड्यूटी भर दीजिए और फिर उसका दंड भर दीजिए। हमने उनको लेटर लिखा कि हमारे यहाँ सीजर इज इटसेल्फ इज नॉट पॉसिबल बिकॉज गोडाउन रिकॉर्ड इज देयर, तो वी रिक्वेस्ट कि सीजर होना ही नहीं चाहिए, आप उसको रिलीज कर दीजिए। फिर वो हमसे अभी 10 दिन से हर रोज एक तो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बट दे आर ऑल्सो नॉट गिविंग क्लियर कट ऑर्डर फॉर प्रोविजनल रिलीज। रवि जी आप कहाँ से हैं? मैं हूँ नडियाद से, अहमदाबाद। नडियाद से ऑन द लाइटर टोन। आपकी जगह अगर आप मौका दे तो मैं टोबैको वहां से रिलीज करवा देता हूँ, हमारे यहाँ पे बहुत डिमांड है। अच्छा नहीं सर, थैंक यू वेरी मच। अभी सर हमारे केस में क्या है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो सर ने बताया, कंसिडरिंग दिस हम अगर जाएंगे कि इशू है हमारा प्रोविजनल रिलीज का क्वांटम ऑफ अमाउंट व्हाट शुड बी। हाँ, तो आपको उतने अमाउंट की बैंक गारंटी देनी पड़ेगी और बॉन्ड देके उसको प्रोविजनली रिलीज करवाना पड़ेगा। बराबर, लेकिन वो अमाउंट भी बहुत हो रही है। हाँ, जो भी हो रही है प्रोविजन है ये, तो गुड्स भी इतने ज्यादा होंगे, बिजनेस भी बड़ा होगा, बट कीपिंग दैट असाइड कि या फिर उनके सीजर को जो एक्शन है उसी को तुम्हें चैलेंज करना पड़ेगा कोर्ट में। कर सकते हो दैट द सर उन्होंने जो भी प्रोसेस फॉलो किया है उसको देख के चैलेंज करना पड़ेगा कोर्ट में। So that can be the search goes by the high court, then you can be saved by ये बैंक गारंटी और प्रोविजनल रिलीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। Okay, thank you sir. So we can go for that. Okay, thank you sir.
Thank you, sir. Next is Mr. Munish Maheshwari. Are you there, Mr. Munish? Yes, sir. Please continue. नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरा डिन के रिगार्डिंग में एक क्वेरी थी। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि डिन सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है उन्हीं के लिए एप्लीकेबल हो रहा है, चाहे वो सीजर है और एनी डॉक्यूमेंट्स हो, क्योंकि लिए वो सीजीएसटी में अमेंडमेंट हुआ है, नोटिफाइड हुआ है मैंडेटरी। तो एसजीएसटी में वो मैंडेटरी नोटिफाइड नहीं हुआ है, तो इस कारण से स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसको यूज नहीं कर पा रहे। अब इसके ऊपर आप कोई क्लैरिफिकेशन कर दीजिए ताकि ये डाउट्स खत्म हो जाए। तो मुनीश जी वापस क्वेश्चन करेंगे? हाँ सर, ऐसे है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं उन्हीं के लिए ये मैंडेटरी है, क्योंकि लिए सीजीएसटी में नोटिफाइड हुआ है ये मैंडेटरी दिन मेंशन करना। I am of the same opinion, and me and Varish ji had discussion on this point about I think 2 or 3 months before. I am of the same opinion. The state government is not employers of state government is not mandatory to issue a notice with DIN. राइट सर जी, सेम ओपिनियन, मैं भी यही ओपिनियन पे हूँ सर। कोई यही है सर? क्या ऐसा ही है सर? जी हाँ जी सर मैं ये ओपिनियन हमारा है ये। हाँ जी मैं अग्री करता हूँ मनीष जी। आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं, there is some थैंक यू सर, थैंक यू। okay, thank you very much. And last is Mr. Shailesh Maheshwaria. Mr. Shailesh, are you there? Yes sir, good evening. Before Shailesh bhai, once a moment, before going to the last question, let me admire the persons who is there in our chat room. मैं भी निशांत शुक्ला जी, भव्य पोपट जी, मनीष त्रिपाठी जी, जीएन शर्मा जी, दीपक बापट जी, अरविंद गुप्ता जी, रुपिंदर कंसल जी और बीआर कौशल जी को मैं और यस मनोज अग्रवाल जी, हाउ कैन आई फॉरगेट यू। मैं सबको आप लोग यहाँ पे चैट रूम में उपस्थित है उसके लिए मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ सर। And please motivate us all constantly. That is the only reason, जतिन भट्ट जी। तो हम सबको आपका मार्गदर्शन कांस्टेंट मिलता रहेगा। स्नेहल ठक्कर जी, तो अब बहुत बढ़िया रहेगा। एंड बिफोर, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन के बाद क्या है कि सब लोग चले जाते हैं, तो आई थिंक इन बिटवीन आई थिंक वी शुड टेक दिस पॉइंट नाउ। निगम जी go with the last question. नहीं, मैंने फिंगर रेज इसलिए किया था कि मेरा नाम नहीं बोले आप शायद भूल गए। अच्छा, निगम जी भी है यहाँ पे। हाँ। So now over to Mr. Shailesh. Please continue with your question, please. हाँ जी, गुड इवनिंग सर। मेरा क्वेश्चन है कि जो रेड पार्टनर के अधिकारी आते हैं उसका कुछ टाइम होता है कि एनी टाइम आ सकते हैं? नहीं, वो जनरली वर्किंग आवर्स में ही आएंगे। नहीं तो मेरे स्टार्ट करते हैं, बाद में लंबी चलती है लेट नाइट तक। नहीं तो मेरे एक पार्टी के वहां रात को 11 बजे आए थे और उन्होंने जबरदस्ती हमारा प्रीमाइसिस खुलवाया था। वो बोला था कि आप खुलवाओ नहीं तो मैं सील कर देता हूँ। तो रात को 11 बजे आया था वो। You have to establish that under these circumstances they forced us, coercively they made us to open the premises at the odd hours, at late hours. तो पंचनामा भी तब स्टार्ट किया होगा, रात को प्रोसीडिंग्स भी रात को स्टार्ट हुई होगी। हाँ, पंचनामा रात के सर्कमस्टेंसेस। शैलेश जी, हाँ जी। नहीं, उसमें क्या हुआ था कि मेरे वो पार्टी के गाड़ी उसको डिटेन की थी 139 एठल और बाद में 130 एठल उन्होंने सर्वे की थी और मेरे जो गाड़ी रिलीज की उससे पहले हमारे प्रीमाइसेस, लेकिन रात को 11 बजे हमारे प्रीमाइसेस में आए थे। सर should I enter in this issue? प्लीज सर, कुंतल जी। यहाँ पे बताना ऐसा है कि देखिए, एक बात मैं बताना चाहूंगा कि एनफोर्समेंट ऑफिसर का भी एक जिम्मेवारी होता है। उसको जब भी आता है तब मालूम नहीं है कि भाई डीलर इज प्रॉपर और नॉट। हमको मालूम होना चाहिए कि माय डीलर इज प्रॉपर, पॉइंट नंबर 1। ऑब्वियसली लेट इवनिंग और लेट नाइट अगर वो विजिट करता है, सपोज इन आवर केस जो भी
बड़ी बड़ी फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज है, उसमें एक कंपनी में जो भी हमारा एनफोर्समेंट लगा था, सेम इशू वॉज देयर. We need to justify that कि why we are not able to cooperate with them in this particular time. जैसे ही आता है गाड़ी और उसको हमको justify करना चाहिए. And next day or next moment पे we have to cooperate. This is the my reply to this. पर निगम जी आज गाड़ी उनकी रुकी रास्ते में, that is the सर section उसमें 2 पॉइंट है. 129. जब गाड़ी चेक पोस्ट पे रुकी थी वो अलग हाँ. थी, अलग मैटर थी, और हमारे ऑफिसर, वहाँ हाँ. जो सर्वे आया था पर उसके वो बेसिस पे अलग जो थी. सर्वे आया था तो उनके पास सर्च ऑथराइजेशन होना ही चाहिए. हाँ, first. वो तो होना चाहिए. सर्च ऑथोराइजेशन था वो, लेकिन क्या हुआ था कि रात को 11 बजे आया था. हमने मना किया साहब हाँ. कल सुबह रखो ऐसे थे, लेकिन बोला कि आप आपका क्लाइंट को बुलाओ, नहीं बुला सकते तो हमको ये सील कर देते हैं आपका जो प्रीमाइसिस है. हाँ, मैंने वही जो बताया कि वो लोग आदमी के बुलाने का फोर्स नहीं कर सकते. निगम में मेरे हिसाब से अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस दे विजिटेड द प्रीमाइसेस एट लेट नाइट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर Yes, दैट इज absolutely. टू बी कंसीडर्ड. So Absolutely. that depends upon the circumstances of each and every case. There is no any straight jacket law कि क्यों उन्होंने विजिट किया, क्यों नहीं कर सकते. We cannot apply. तो It सर has इस to be बेस decided. सर इस बेस पे मैं अपील दाखिल कर सकता हूँ? मतलब कोई ऑर्डर पास हो गया है तो उसके सामने आप अपील कर सकते हो. नहीं, ऑर्डर तो हमने जो सर्वे 2 दिन चले उसमें जो टैक्स आया तो हमने ऑनलाइन टैक्स भर के DRC 37 करके वो भी सब सेट ऑफ हो गया, पूरा हो गया. हमने हमने मर्जी से टैक्स तो भरा है, लेकिन उस बेस पे मैं अपील कर सकता हूँ हाँ, कि हमको रात को 11 बजे आके डिस्टर्ब किया और अपील कर देंगे. Not the अगर appeal, आपको you have to file the writ. You have to file the writ. मतलब Appeal is आपको not. ऑर्डर पास हो गया है तो आप अपील कर सकते हो. अगर ये जो प्रोसीडिंग्स है आपको ऐसा लग रहा है कि जो सर्च जो हिसाब से उन्होंने कैरी किया वही पूरा गलत है, तो यू कैन फाइल द पिटीशन बिफोर द कंसर्न्ड हाई कोर्ट. समझ गया सर, समझ गया. Thank you, शैलेश जी. Next is Mr. Rasik Kanpuria. Hello. Yes, Mr. Rasik Kapupra. Yes. Please continue. हेलो. हाँ सर मेरा क्वेश्चन ये है. हेलो. हाँ जी हेलो. बताइए, बोलिए. मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पार्टी को एक समझ दिया एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट से कि बुक्स ऑफ अकाउंट लेकर हाजिर हुए. हम हाजिर हुए तो उसने बोला कि ये सक्षम पार्टी का जो परचेस हुआ है वो परचेस बिलिंग का है और आप पेमेंट करवा दीजिए. तो समझ के हिसाब से ओरली होके पेमेंट कर सकते हैं या उसको कुछ असेसमेंट करवाना है? समन्स के हिसाब से समन्स के बेसिस पे वो लोग पेमेंट मांग सकते हैं. नहीं पे करने की बात है वो तो एसएससी को जब भी पे करना है वो कर सकते हैं. तो क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये है कि असेस मतलब ऑफिसर आपको पेमेंट करवाने के लिए बोल सकता है, तो मेरे हिसाब से खाली समन्स के बेसिस पे नहीं बोल सकता है. ही कैन नॉट डिमांड द टैक्स. हेलो. थैंक यू रसिक जी. रसिक जी क्लियर है सेक्शन जी? हाँ जी. इसके रिगार्ड्स में I want to raise one question because in the earlier regime it is very much frequent. तो the question is कि कई बार ऐसा होता है, अभी jurisdictions are there are so many jurisdiction, issuance of summons is very much frequent. एक ट्रांजेक्शन एक ईयर या एक मंथ के लिए एक से ज्यादा जगह से समन्स आता है and it is very much normal for everybody. आपकी आवाज नहीं आ रही अक्षय जी, आपकी आवाज कट गई थी अक्षय जी. ओके. एक ही ट्रांजेक्शंस के लिए एक से ज्यादा बार समन्स आता है अलग अलग डिपार्टमेंट से या अलग अलग अथॉरिटी से. DGCI से, प्रिवेंटिव से, लोकल अथॉरिटी से. तो कहाँ तक हम जवाब देंगे? हाँ, मेरे हिसाब से अभी ये जो नोटिस और समन्स के बीच में बहुत फर्क है. समन्स जब इश्यू होता है द पर्सन हैज टू पर्सनली अपीयर बिफोर द अथॉरिटी. नोटिस में तुम रिप्लाई भी दे सकते हो. तो अनफॉर्चुनेटली ये जो प्रोसेस है उसके लिए तुम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हर एक केस में समन्स नहीं इश्यू किया जाए. कोई ग्रेव केस है तभी समन्स, जब पर्सन असेसी की खुद की हाजिरी जरूरी है तभी समन्स इश्यू किया जाए. नहीं, मेरा एक ही अथॉरिटी को एक ही पार्टी को एक
पर्टिकुलर मंथ के लिए एक से ज्यादा बार या एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस के लिए या एक पर्टिकुलर ईयर अपन के इसमें अक्षत भी ऐसा है कि ट्रांजैक्शन है कि अलग अलग अथॉरिटी का अलग अलग इन्वेस्टिगेशन है तो वो लोग इश्यू कर सकते हैं, पर समन्स के बेसिस पे कोर्ट में समन्स को चैलेंज करना इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा बिकॉज इट टेंटामाउंट के आप इन्वेस्टिगेशन ही आगे नहीं चलना चाहते हो। नहीं, then when the assessment proceeding or this proceeding will close, मैं वही बोल रहा हूँ कि जवाब देगा। ऑफिसर हैज टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द notice and the summons when there is a requirement of issuance of the summons and when the notice is to be issued, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा प्रैक्टिस अभी नहीं है। हर एक ऑफिसर्स हर एक केस के लिए समन्स ही सीधा इश्यू करते हैं। Because in every case it is happening. यहाँ पे एक अथॉरिटी को जवाब दिया तो दूसरी अथॉरिटी देती है, दूसरी अथॉरिटी को जवाब दिया। पर मेरे हिसाब से नोटिस ही इश्यू करना चाहिए, हर एक केस में समन्स इश्यू करने की जरूरत नहीं है। ओके, मगर ओके, तो अगर ये लोग नहीं कर रहे, अगर can we challenge the summons for the same proceeding from the different authority? इसमें बहुत सारे एक साथ में कोई डेटा लेके चैलेंज करो तो अलग बात है, पर आप एक असेसी या दो असेसी जाएंगे तो कोर्ट विल से कि ये समन्स है, इट इज इन्वेस्टिगेशन, यू कैन नॉट जस्टिफाई कि इसमें समन्स But the same investigation has been completed, even if same investigation is completed by some authority. But if the authority is different, then the department is different, then the another authority can certainly do the investigation if it is within their power. आपको कोर्ट को दिखाना पड़ेगा कि ये मुझे स्पेसिफिकली हैरेसमेंट है विथ इंटेंशन कि ऑफिसर मुझे परेशान कर रहा है, then you can challenge, you have to frame the case, otherwise straight away आज कोई भी एसएससी और इन्वेस्टिगेशन दो जगह होगा, he cannot challenge. ऑफिसर जो समन्स इश्यू कर रहे हैं उनका इन्वेस्टिगेशन अलग अलग होगा। हेलो, Can be the part of our representation in next thing. Sure. Yeah, we have to show that this is the practice के इतने समन्स इश्यू हुए हैं ये मंथ में, वो डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं कितने समन्स इश्यू हुए। तो हेलो, not an issue. Next is Mr. Mohit Verma from Jammu. Tanvi. हेलो Mr. Mohit, जी सर जी, please continue, raise your question. ओके सर। हेलो नमस्कार सर, मेरा एक क्वेश्चन था। नमस्कार। हाँ जी। सर एक्चुअली मेरी एक दुकान मेरा क्लाइंट था, उसके दुकान पे हुई रेड, किसी ने शिकायत की थी, तो इन्फॉर्मेंट्स की टीम पूरी आई थी, 25-30 बंदे आए, सब कुछ चेक हुआ, स्टॉक चेक हुआ, पूरा दिन लगा। उसके बाद वो मेरा स्टॉक उन्होंने स्टॉक और मेरी बुक्स ले गए, स्टॉक सीज कर दिया, बुक्स ले गए। फिर वो आगे प्रोसीडिंग चलती रही, फिर मैंने उसके अगेंस्ट अपील भी कर दी है, मगर आज 1 साल हो गया है। मैं असेसिंग अथॉरिटी जो वो है सीटीओ, उसके पास जाता हूँ, वो उसके साथ मेरी थोड़ी उसी दिन वो मुझे कहता पेनल्टी जमा करा। मैंने कहा मैंने इसमें कोई पैसा नहीं जमा कराऊंगा, मेरे को पेनल्टी लगती नहीं है। उसने जबरदस्ती मुझे लगा दी, तो मैंने कहा कोई नहीं, मैंने अपील फाइल कर दिया, मगर वो मेरे रिकॉर्ड जो दे रहा है, तो 1 साल हो गया हुआ, क्या वो 1 साल मेरे रिकॉर्ड रख सकता है अपने पास? नहीं, 12 महीने से ज्यादा गुड्स तो कोई भी संजोगों में नहीं रख सकते। अगर गुड्स है तो गुड्स भी मेरे उन्होंने किए हुए हैं सीज। हाँ, तो गुड्स उनको रिलीज करने पड़ेंगे क्योंकि 6 मंथ्स में नोटिस देने के 6 मंथ्स के बाद रिलीज करने पड़ते हैं मैक्सिमम। वो लोग और 6 मंथ्स के लिए रख सकते हैं सब्जेक्ट टू गिविंग द रीजंस इन राइटिंग। अगर बुक्स डॉक्यूमेंट्स है तो वो लोग अपने पास रख सकते हैं फॉर द इन्वेस्टिगेशन, पर उनकी कॉपी आपको दी होनी चाहिए। मैंने उसके लिए भी उनको लिखा हुआ है वो, बट वो ना कॉपी देते हैं, कहते हैं पैसे जमा कराओ। मैंने कहा क्यों कराओ, मैंने अपील की हुई है। टू चैलेंज इन द हाई कोर्ट, आपको पिटीशन फाइल करके फिर ये को चैलेंज करना पड़ेगा गुड्स वापस लेने के लिए मेनली। तो ठीक है, बाकी मेरा 1 साल मेरा नहीं ना कर सकते वो स्टॉक, इतनी देर फिनिश स्टॉक रख सकते हैं आपके पास। ठीक है सर, मैं समझ गया, थैंक यू मोहित जी। आप जो बता रहे हो वो इसको वो लोग नहीं रख सकते। थैंक यू सर, थैंक यू। ऑर्डर भी पास हो गए आप बता रहे हो। वेलकम। हाँ, मैंने अपील भी फाइल कर दी है। हाँ, इसीलिए तो आप स्टॉक रख के क्या फायदा है। बिल्कुल, वो दे नहीं रहे मेरे को, इशू नहीं कर रहे, कहते जब तक आपकी अपील फाइनल नहीं होगी हम रिलीज नहीं करेंगे आपके फिनिश्ड गुड्स। आई बिलीव कि आपने बहुत सारे कागज लिखे होंगे, तो पेपर ट्रेल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन। बिल्कुल जी सर। हाँ, तो आपको फायदा हो सकता है, पर आपको रीड करनी पड़ेगी, वरना ये ऑफिसर मतलब पेपर से नहीं मानेंगे। दिस पेपर्स में हेल्प यू इन द कोर्ट कि हमने इतनी बार बोला उनको, उन्होंने वापस नहीं लौटाया। जी जी।
थैंक यू सर, थैंक यू, Thank you, Mohit ji. थैंक यू अक्षय सर, थैंक यू निगम सर, थैंक यू सो मच. Please. Next is having identity with Redmi. राजेश वाटवानी सर, ग्वालियर, फ्रॉम ग्वालियर. Yes, please continue, Rajesh ji. सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप कोविड-19 में किस हेयर सैलून पे जा रहे हैं? बहुत डायनामिक लग रहे हैं आप. हेयर सैलून घर पे ही सर. अच्छा. बार्बर नहीं आ रहा है, Marvelous, इतना बढ़ रहा है. थैंक यू वेरी मच. अच्छा, मेरा क्वेश्चन सर मुझे देख के लग रहा है लॉकडाउन. सर मेरा क्वेश्चन सर ये है, 8 मार्च को एक गाड़ी डिटेन की गई है ग्वालियर में, जो कि रायपुर से चली है और दिल्ली को जा रही थी, और सेक्शन 129 में उसको डिटेन किया गया है, जबकि मेरा व्यापारी, मेरा क्लाइंट रजिस्टर्ड है. तो रजिस्टर्ड होते हुए उसको सेक्शन 129 में तो डिटेन किया नहीं जाना चाहिए. नहीं कर सकते 129 में सीज. कौन से रीजन से उन्होंने सीज किया है, गुड्स डिटेन किया है, वो रीजन से लिखा होगा आपको जो डॉक्यूमेंट्स फॉर्म्स इश्यू किए. सर उस वक्त तो लिख दिया. सर सिंपल है, राजकोट से दिल्ली जा रहा है, ग्वालियर कहाँ आया बीच में? सर ग्वालियर तो नहीं आया, पर ईवे बिल है. इसके अलावा हमारा जो व्यापारी था वो भी रायपुर से चल रहा था दिल्ली की तरफ. ये तो जब उसको पता पड़ा कि मेरी गाड़ी डिटेन की गई है तो वो बेचारा ग्वालियर आया है. ये तो अब लॉकडाउन हो गया है तो वो गाड़ी अभी भी ग्वालियर में ही खड़ी है. गुड्स सीज करते रजिस्टर्ड पर्सन है तो डजंट मीन कि उसकी गुड्स सीज नहीं हो सकते. हाँ, मतलब अब मैं बस यही पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा क्वेश्चन भी यही है कि मैं जब अब अपनी इंटरप्रिटेशन करूंगा तो इस बेस पे ही करूं कि कुछ और भी मुझे कोई गाइडलाइन मिल सकती है. वो तो देखना पड़ेगा आपके फॉर्म. उन्होंने जो सीज किया उसमें रीजंस लिखे होंगे सर, कि कौन से बेसिस पे उन्होंने सीज किया है, क्यों सीज किया है, डिटेन किया है, ड्राइवर का स्टेटमेंट लिया होगा. सर एक ही रीजन है, रायपुर से जिन लोगों से वो माल खरीदा गया है वो अनरजिस्टर्ड थे और उनको ये लग रहा है कि ये माल की कीमत ज्यादा होनी चाहिए और यहाँ कम लिखी गई है, बस. हाँ तो वो लोग इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. हाँ मैंने भी उनसे यही कहा कि सर आप तुम्हें गुड्स छुड़वाने तो अभी टैक्स पेनल्टी पे करके गुड्स छुड़वाने पड़ेंगे या फिर कोर्ट जाना पड़ेगा छुड़वाने के लिए. दैट डिपेंड्स अपॉन कि तुम्हारा केस कितना स्ट्रांग है. एक्चुअली क्या ये केस भी मुझे अभी इसलिए नहीं समझ में आया कि मुझे भी सेल टैक्स ऑफिस, जीएसटी ऑफिस में ही गाड़ी जो डिटेन की गई थी वहीं मिले. इस बीच फिर लॉकडाउन हो गया तो वो क्लाइंट भी रायपुर का अभी बना था. हाँ जी. हाँ नहीं तो ऑफिसर उनको सीज कर सकते हैं. आपको उसको चैलेंज करना है तो देखना पड़ेगा कि कौन से बेसिस पे उन्होंने ये गुड्स सीज किए हुए हैं. हाँ फिलहाल तो यही उन्होंने लिखा है 02, 06, 07 में जो उन्होंने नोटिस दिए हैं. हाँ तो उन्होंने रीजन तो यही लिखा है. और हरियाणा रोड लाइंस को मतलब उन्होंने हरियाणा रोड लाइंस के लिए ही हाँ तो सर आप 07 के रिप्लाई में आपका केस जो बनाना है वो केस बनाइए, फिर वो लोग 09 में ऑर्डर पास करेंगे. हाँ वो मैंने बना भी दिया और अब लॉकडाउन के बाद वो केस बनाएंगे. देखते हैं फिर आफ्टर लॉकडाउन अगर जब भी हम फिर से जूम मीटिंग में बैठेंगे तब ये we will discuss on this issue please. जी सर, जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट इज मिस्टर जिग्नेश व्यास फ्रॉम जूनागढ़, गुजरात. मिस्टर जिग्नेश प्लीज कंटिन्यू. हेलो कुंदल सर से मैं पूछना चाहता था. हाँ जी. जब भी वो सर्वे के लिए आते हैं तो उनके पास जो वारंट होता है INS 01, हाँ जी, तो उनका कॉपी देना कंपलसरी है या नहीं है? हाँ आपको वारंट देना पड़ेगा दिखाने के लिए, ये सर्च के लिए वो आ रहे हैं. वो सिर्फ दिखाने के लिए देना है या उसका कॉपी भी देना है? नहीं, आपको कॉपी देना है, बाद में लौटा देना है आपको सर्च होने के बाद. मतलब मेरी पार्टी के वहाँ ये हुआ था, उसके बाद हमने उसके लिए अप्लाई किया है INS 01 के लिए. अभी 6 महीने हो गए, उन्होंने कॉपी नहीं दिया है. नहीं पर आपको दिखाया था तब? हाँ दिखाया था, साइन भी ली थी. हाँ ठीक, पर अल्टीमेटली इस पे आपका कोई केस नहीं बनेगा जी. आपका कोई स्टेटमेंट लिया है और स्टेटमेंट के बेसिस पे कोई केस फ्रेम किया है आपके सामने, तो वो स्टेटमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. पर अभी जो सर्च खत्म हो गया है
उसकी कॉपी अगर आपको दे भी देते हैं तो हाउ इट वुड हेल्प यू? अनलेस यू आर श्योर कि आप जस्टिफाई कर सकते हो कि इसमें हमारी प्रीमाइसेस नहीं लिखी थी और उन्होंने दूसरी प्रीमाइसेस सर्च कर दिया है, then you will have some case for asking for this document. But when you are sure कि आपने वो देखा हुआ है वो भी तो देखना पड़ेगा। खाली ये जो आप मांग रहे हो उसके बेसिस पे तुम्हारा कोई केस नहीं बनेगा। देखो हाँ, आपको सीजर मेमो नहीं दिया है या पंचनामा नहीं दिया केस है। नहीं बनेगा, पर अगर शायद हाँ जी नहीं ऐसी बात नहीं है, पर अगर उसमें कोई गलती की है उन्होंने, कोई टेक्निकल फॉल्ट है तो वो तो देखना पड़ेगा। हाँ, वो तुम मांग सकते हो उसमें कोई गलती है तो, पर सी इसमें मेन सब तो वो जो भी मिस्टेक उन लोगों को देना पड़ेगा ना, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, INS01 नहीं दे सकते ऐसा। कॉपी पर आप मांग सकते हो उनकी कॉपी। देयर इज नो रीजन कि वो लोग तुम्हें डिनाई करें। ओके ओके, थैंक यू। Thank you very much. Welcome. Welcome. Next is last person is from I think Jammu, Mr. Aman Diora. Mr. Aman. Yes, sir. Please continue. सर गुड इवनिंग सर, मेरी कुछ अलग सी क्वेरी है कि कोई वो कह रहे हैं कि मेरा 12 महीने से बुक्स नहीं दी, या कोई कह रहा है मेरा अनरीजनेबली इलीगली गोडाउन सील कर दिया। तो हम रिट पिटिशन करते हैं या सब कुछ करते हैं, पर ऑफिसर्स की ग्राउंड लेवल्स पे जो रियलिटी है वो तो उसका सबको पता ही है कि क्या इनके लिए भी कोई पेनल्टी या कोई प्रोविजन है कि ये इन्होंने इलीगली कर दिया, हमें हरासमेंट कर दी, रात को 11 बजे आए, या हम रिट पिटिशन करके हम केस को विन कर लिया, तो क्या इनके लिए भी कोई है कि इनको भी आपको ऑफिसर के सामने केस अलग से करना पड़ेगा, फिर उसमें एग्जामिन होगा। जैसे सेक्शन 157 में उनकी जो एक्शन है वो इम्यूनिटी है कि नहीं वो एक्शन के लिए। ये जो मैंने गुजरात हाईकोर्ट का केस बताया परेश नाथालाल चौहान, उसमें हाईकोर्ट ने क्लियरली लिखा है कि अंडर विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी दिस एक्शन इज पिनलेबल, पर अनफॉर्चुनेटली कोई एक्शन नहीं लिया है। कोर्ट हैज पुट अ क्वेश्चन आल्सो कि दिस एक्शन इज नॉट कैन नॉट बी सेव्ड बाय द सेक्शन 157 प्रोविजंस, कि उनको जो ऑफिसर्स को जो इम्यूनिटी है पर फिर भी उनके सामने कोई एक्शन नहीं लिया गया। बट कोर्ट हैज मेड वेरी श्योर कि दिस इज इलीगल एक्शन। तो इतने सीवियर केस में भी कोर्ट ने अल्टीमेटली कोई एक्शन नहीं लिए उनके सामने। लिखा भी है उसमें 3 साल की इम्प्रिजनमेंट है, जो आईपीसी का सेक्शन उनके सामने लगाया है वो जजमेंट में भी लिखा है। ठीक है जी। तो आपको मतलब कोई एससीसी को किसी ऑफिसर के सामने केस करना है तो वो तो क्रिमिनल केस कर ही सकते हैं, कर सकते आईपीसी के। नॉर्मली ऑफिसर्स की मैलाफाइड इंटेंशन रहती है हमेशा ही कि फॉर वन रीजन और द अदर, तो बिजनेस अब आगे नहीं करना है एसएससी को और बंदी करना है तो कर सकते हैं। नहीं वो तो ठीक है, पर कोई भी केस कोर्ट तो ऐसा human जनरल being बेसिस पे एंटरटेन नहीं करेगी कि ये ग्राउंड रियलिटी ऐसी होती है, जनरली हैरेस करते ही है, इन्वेस्टिगेट करते ही। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। Thank you very हाँ much. जी अमित। Now all together I am very much thankful on behalf of NSC, Tax Advocate Association, Gujarat Sussex Bar Association and allied association across the country